Hello students, welcome in our next lecture of chapter 4 Growing Up as Boys and Girls from Civic for class 7. Students, before that we learn about the gender, the difference between the sex and gender stereotyping. Now in that lecture we will learn about gender inequality. Students, before that I want to ask you one question about what is stereotype, means what you understand about the stereotypes. According to you, what is the meaning of stereotype? Stereotype means what? Now see that stereotype means it is a fixed opinion about someone which is fixed in our mind. So many times these stereotypes are not right, means many times all the stereotypes are wrong, but that stereotypes determines from society or from our family. So see that next we will see gender inequality. Students, already we learn in our history in the prehistoric period. Prehistoric period means near about 2 million before ago. Prehistoric period where the all means the humans were hunter gatherers. But on that time also we also learn about that we are not having any proof or any writing record about that time, but on that time also the separate roles have emerged for women and men. 2 millions before the roles were fixed for men and women. In which period? In a prehistoric period. Men would go for hunting. The men, they will go for hunting animals, and women would look after home. When they realized that they had to stay on one place or they had to stay in a group because of the wild animals, so on that time the men, what was the work of the men? The men would go for hunting animals and women would look after home and children. So from that 2 million years ago, that work, that function of that role of the men and women is going on till 2020. आज भी ऐसा ही है. हमारे पापा पैसे कमा कर लाते हैं, हमारे मम्मी के पास देते हैं और फिर हमारी मम्मी पूरे घर का खर्चा चलाती है. फिर हमारे ट्यूशन फी हो, स्कूल फीस हो, दूध वाले के पैसे, इस्त्री वाले के पैसे, किराना, जो भी है घर में जो भी लाना है वो सब कौन संभालती है? मम्मी संभालती है. और वो पापा के लिए कोई क्वेश्चन नहीं करते उनसे काम से रिलेटेड, और पापा उनसे कोई क्वेश्चन नहीं करते. यानी दोनों के जो बैलेंस है वो इक्वली चलते रहते हैं. सो एज टाइम पास चेंजेस केम अबाउट इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू resources, benefits and opportunities. So now see that at time pass, now today's some opportunities also available for the women also, means women can also do job in out of the house. In every field we can see the women to doing their job properly, but they also handle their job also and their household activities also. घर के भी काम उनको करने और बाहर के भी करने. लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए क्या? नहीं, ज़्यादा नहीं हुए. वो बाहर का काम करते हैं तो सिर्फ काम ही, दूसरा कुछ उनको घर का बोला नहीं जाता. Yet the issues of gender inequality has been prevalent in all societies for centuries and continues to exist even today also. See that is the gender inequality. Gender inequality यानी स्त्री पुरुष असमानता हमें यहाँ पर दिखाई देती है. कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल देखो, सपोज अगर किसी मेन के लिए ऑफिस में कोई जॉब है और वीमेन के लिए भी उसी ऑफिस में जॉब है,
दोनों का प्लेस एक ही है जॉब का। मेन की ड्यूटी है 8 to 11 ओ क्लॉक का वो ओवर टाइम कर सकता है, लेकिन फीमेल के लिए ऐसा नहीं है। 8 बजे अगर आप आते हो तो 5 बजे आप घर जाओ। ओवर टाइम करना नहीं करना वो उन पे डिपेंड है। जैसे ये 5 बजे तक आती है, पूरे हाउस घर के काम उनको फिर से करने, खाना वगैरह बनाना, बच्चों को संभालना, इन दिस पे कोई इनको कोई नहीं पूछेगा कि आप 11 बजे क्यों आए, आप 11:30 बजे क्यों आए। और जहाँ पर हम सैलरी की बात करते हैं एज ए कम्पेयर टू द सैलरी, मेन और फीमेल के सैलरी में भी बहुत डिफरेंस है। आप अभी जो फार्मर वर्कर्स है उन्हीं का देखो, आपके पास अगर खेती है आपके घर में तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ पर मेल की एक दिन की 1 डे सैलरी अगर 300 रुपीज़ है 1 डे, तो वही फीमेल की 150 है 1 डे। यानी इनको काम के लिए भी क्या समझा जाता है, वीक समझा जाता है, पुअर समझा जाता है, यानी सेकेंड लेवल पर इनका काम डोमिनेट किया जाता है। सो सी that is gender inequality. A very disturbing effect of gender inequality is female foeticide. See that second one, female foeticide. Foeticide means what? What is the meaning of female foeticide? It is an inhuman practice where girl child killed at the time of birth or even before birth. फोर्टिसाइड यानी स्त्री भ्रूण हत्या हम जिसको बोलते हैं, स्त्री भ्रूण हत्या, दैट इज अ क्राइम. इट इज एन इनह्यूमन प्रैक्टिस वेयर द गर्ल चाइल्ड इज किल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ और इवन बिफोर बर्थ. जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, तो चौथे 5वें मंथ में ही उसके स्टमक के अंदर क्या है, मीन्स वो बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है, ये मशीन से, सोनोग्राफी से ये पता करवाया जा सकता है. अभी गवर्नमेंट ने उस पर पूरी तरह से बैन किया है. अगर ऐसा कोई करते हुए दिखाई भी दे तो उनके हॉस्पिटल सील किए जाते हैं, डॉक्टर की जो डिग्री वगैरह है वो भी छीन ली जाती है उनसे. बहुत बड़ा क्राइम है ये हमारे कंट्री में. पर ऐसा पहले होता था, 4 या 5 महीने में ही सोनोग्राफी करके पता करते थे कि ये मेल है या फीमेल है, और अगर मेल है तो ठीक है, लेकिन अगर फीमेल है तो उसके स्टमक के अंदर ही इंजेक्शन वगैरह देकर उसकी डेथ करवाते. और अगर उसका जन्म हो भी जाता, बहुत से ऐसे छोटे छोटे गांव है जहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं कि सोनोग्राफी वगैरह वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, जैसे बेटी का जन्म होता है, एक बड़े से बर्तन में दूध वगैरह लेकर दूध के अंदर उस बेबी गर्ल को डुबोकर मार देते, पानी में डुबोकर मार देते या कुछ खिलाकर उसको मार देते थे. तो इस तरह से हमारे देश में क्या हो रहा था, जो वीमेंस की क्वांटिटी वो बहुत ज़्यादा कम होती हो जा रही थी. नियर अबाउट अगर 1000 बॉयज़ है, सी दैट, नियर अबाउट अगर 1000 बॉयज़, तो उनके कंपेयर में गर्ल्स कितनी थी, 900. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन एक ए अराइज होता है कि 1000 अगर बॉयज़ है, 900 अगर गर्ल्स है, तो 100 बॉयज़ के लिए वाइफ कहाँ से मिलेगी, वाइफ्स इनके लिए लाए कहाँ से, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हो रहा था. तो ये मार्जिन कम करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ही स्ट्रिक्टली स्टेप्स यहाँ पर उठाए. हेंस स्टैटिस्टिक्स शो दैट इन इंडिया देयर आर मोर मेल्स दैन फीमेल्स. द गर्ल्स चाइल्ड इज किल्ड because she is seen as the burden on the family. And why they kill the baby girl over there? See that there are the 2 causes. The first one, burden of the family. burden यानी बोझ, कि वो अपने फैमिली के लिए क्या है, एक बर्डन है, बोझ है एक. So see that the girl child is killed because she is seen as a burden on the family. और बिलीव कॉज बाय प्रैक्टिस ऑफ गिविंग डोरी. पहला तो एक बोझ है, बोझ यानी कैसा कि
उसको जन्म दो, उसको खिलाओ पिलाओ, उसको एजुकेशन पर खर्चा करो, और वो क्या है, एक पराया धन है, यानी शादी करके वो कहाँ चली जाएगी, अपने घर चली जाएगी। हमसे उसका वंश आगे बढ़ेगा क्या? नहीं। तो ये एक सिर्फ बर्डन है, बोझ है हम पर। और दूसरा है डोरी। डोरी मीन्स दहेज, दहेज प्रथा। आज हमारे लॉ ने, हमारी सोसाइटी में इसको भी बैन कर दिया है गवर्नमेंट ने। जो भी डोरी वगैरह मांगेगा, दैट इज़ अ क्राइम। बहुत बड़ी पनिशमेंट, सज़ा उनको हो सकती है जो भी डोरी मांगते हैं, डिमांड करते हैं। पर कुछ लोग चोरी चुपके से मांगते ही है। और जो पेरेंट्स होते हैं, लड़की के माता पिता, वो भी अपनी लड़की की खुशी के लिए दे देते हैं। सो सी दैट डोरी, अ बिलीव दैट caused by the practice of giving dowry. Dowry is a huge amount of gift. What is the meaning of dowry? Dowry means a huge amount of gift. Dowry means it is a huge amount of gift, both in cash and kind, that a father has to give to another daughter, to give the daughter during her wedding. What is dowry? Dowry is a huge amount of a gift, both in a cash and kind, that a father has to give to the daughter during her wedding. लड़की की शादी पर जो पिता होते हैं उनको एज अ कैश 1 लाख 2 लाख इतनी डॉरी उनको देनी पड़ती है, या फिर कुछ गिफ्ट। गिफ्ट मीन्स फॉर एग्जांपल कार, बाइक, गोल्ड और होम, ऐसे कुछ चीज़ें देने पड़ते हैं। कब? जब लड़की की शादी होती है तब। तो या तो उसको बड़ा करो, खिलाओ पिलाओ, उसके एजुकेशन पर खर्चा करो, और फिर जब उसकी शादी आएगी तो उसको बहुत सारा दहेज दो। सो सी दैट बहुत सारे सुसाइड हमारे देश में इसी वजह से होते हैं कि लड़की के पास दहेज देने के लिए पैसे नहीं, उसके पिता के पास, तो जो लड़की वो सुसाइड करती है या फिर लड़की का पिता कर लेता है। और इतना ही नहीं, आफ्टर मैरिज वो जो लड़की है, ठीक है, न्यूली मैरिड, तो उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। कैसे? अगर वो दहेज की पूरी रकम लेकर नहीं आती है तो उसको टॉर्चर करके फिर से उसके मैके भेज दिया जाता है। उसको खाना नहीं देते, बहुत ज़्यादा काम बोलते करने के लिए, यानी फिजिकली और मेंटली टॉर्चर उसको करते रहते हैं। तो इससे क्या होते हैं, जो मैरिड वीमेन है हमारे देश में, तो वो भी बहुत ज़्यादा सुसाइड होते हैं। बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में देखते हैं कि किसी ने जलकर सुसाइड कर ली, किसी ने पॉइजन ले लिया, इन दिस वे। सो सी दैट इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ गर्ल्स फैमिली टू fulfill the huge dowry demands of a groom's family. At times, a father has to use all his savings or even take huge loans to get a daughter married. So see that many of the parents take a loans from bank or a money lenders, but it is very difficult to return that money to that bank or money lender. So they also committed suicide over there. So ये हो गया एक causes why the female foeticide means why the people killed the baby girl. सेकेंड, यहाँ पर अगर हम देखें हमारे इंडिया का ट्रेडिशन अगर हम देखें, सो इन आवर इंडिया दैट वीमेन इट लास्ट लीस्ट थ्रू आउट देयर लिव्स इवन व्हेन प्रेगनेंसी ऑल्सो। हमारे देश की जो महिलाएं, सपोज अगर जॉइंट फैमिली है, तो जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि जो महिला है वो सबसे लास्ट में खाना खाती है। पहले घर के जो मेल होते हैं, फिर जो बुज़ुर्ग होते हैं, ओल्ड पर्सन, वो खाते हैं, फिर बच्चे, चिल्ड्रन, और फिर सबसे लास्ट में वीमेंस खाना खाती है। अगर वो प्रेग्नेंट हुई तब भी। और इसीलिए सो इंडिया हैज़ अ वेरी हाई रेट ऑफ चाइल्ड malnutrition. Malnutrition means what? What is the meaning of malnutrition? malnutrition यानी कुपोषण, कुपोषित। बहुत ज़्यादा बच्चे malnutrition born होते हैं, यानी कुपोषित जन्म लेते हैं हमारे देश में। So see that is the examples of female foeticide and gender inequality. So see that 2 examples are there. First one, growing up in Samoan in 1920s.